Now discuss about the atomic mass unit. In this video we discussed atomic mass unit, composition of nucleus, in which we discuss about the two hypotheses, proton electron hypothesis and proton neutron hypothesis. And then we discuss about the nuclear size, nuclear density and nuclear forces. ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट और AMU, द यूनिट इन विच वी मेजर एटॉमिc as well as nuclear masses, known as AMU, atomic mass unit. An atomic mass unit may be defined as, it is the 1/12th of mass of the carbon-12 isotopes. It is the mass of 1/12th mass of the carbon-12 isotopes. 1/12th of mass of the carbon-12 isotopes. You know that about the Avogadro number. N equals to 6.023 10 to the power 23. ठीक, it is the Avogadro number. Now 6.023 10 to the power 23 atoms का मास कितना हुआ? 12 ग्राम इन कार्बन 12. 1 एटम का मास 12 by 6.023 10 to the power 23. It is the mass of 1 atom. Now 1 AMU, 1/12 of mass of carbon 12 10 to the power 23, or 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1.66 10 to the power माइनस, ये बनेगा जाके 27 किलोग्राम में जाके बनेगा. तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 10 to the power minus 27 किलोग्राम इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU. ठीक, नाउ एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 to the power minus 19 जूल. ठीक, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी की यूनिट है. और एक होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. (1.6 10 to the power minus 13 जूल. ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हो गई. एक रिलेशन है इन बिटवीन 1 AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इनमें एक रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपको. MC² होता है 1.66 10 to the power minus 27. वेलोसिटी ऑफ लाइट ये जूल में आएगा. इसको कन्वर्ट करो 1.6 10 to the power minus 13 से. सॉल्व करेंगे तो 931 और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. तो कुल मिला के 1 AMU डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना है
931 और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। 1 AMU इक्वल्स टू 931 और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक रिलेशन आ गया AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक ना, अब लेके चल रहे हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस लेके चल रहे हैं हम लोग। उसमें लेके चल रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। और ये थ्योरी 1930s में आई। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी whole atom is electrically neutral and proton has a one unit fundamental positive charge and stable, and electron has one fundamental negative charge, and its mass is almost negligible if we compare with the proton. According to this theory, न्यूक्लियस का मास A होगा, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर Z होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी A is the proton inside the nucleus and A minus Z is the electrons inside the nucleus. According to proton electron hypothesis, inside the nucleus A protons और A minus Z electrons होंगे, but whole atom is electrically neutral. It means Z number of electrons will also exist. अब ये जो electrons होंगे, according to proton electron hypothesis, they revolves around the nucleus in circular orbits. क्लियर? क्या बताया इस हाइपोथेसिस ने? प्रोटॉन के पास यूनिट पॉजिटिव फंडामेंटल चार्ज होगा, स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन के पास वन यूनिट फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज होगा एंड मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफ वी कंपेयर विद द मास ऑफ द प्रोटॉन। न्यूक्लियस में ए प्रोटॉन्स होंगे तो A माइनस जेड उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब जेड इलेक्ट्रॉन्स और होने चाहिए। दी जेड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये थ्योरी फेल हो गई 1932 में जब चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की, तो ये थ्योरी फेल हुई। फिर नई थ्योरी आई, दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, the charge of the nucleus is just equal to the charge of the proton. That means Z is the number of protons inside the nucleus, and you know that protons have a fundamental positive charge, so nucleus will be positively charged and its charge equals to number of protons. A minus Z is the number of neutrons inside the nucleus. ठीक? After discovery of neutrons, theory change हुई। Z the number of protons inside the nucleus and A minus Z the number of neutrons inside the nucleus, and whole atom is electrically neutral. That's why same number of electrons revolves around the nucleus in circular orbits. Clear? तो ये थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। Clear? Now we discuss about the nuclear size or size of the nucleus.
nuclear size. Experiment found that the volume of the nucleus is directly proportional to mass number. Directly proportional to mass number. Or R equals to R naught a to the power 1 by 3. R naught is the empirical constant. 1.2 10 to the power minus 15 meter is the value of R naught. So R equals to R naught a to the power 1 by 3 is the nuclear size. Volume of the, is clear? Volume of the nucleus is directly proportional to mass number. 4 by 3 pi r cube कर दिया. R equals to R naught a to the power 1 by 3. R naught is the proportionality constant. Value 1.2 10 to the power minus 15 meter, known as empirical constant. Now, nuclear density. It's the ratio of nuclear mass upon nuclear volume. Nuclear mass upon nuclear volume. Nuclear mass हो जाएगा Ma और न्यूक्लियर वॉल्यूम हो जाएगा 4 by 3 पाई आर क्यू. Ma अपॉन 4 by 3 पाई आर की वैल्यू लगा दो, आर नॉट क्यू इंटू ए. सो इट इज इक्वल्स टू 3m upon 4 pi r naught q. So what the conclusion? Nuclear density is independent of mass number. Independent of the mass number. Nuclear density mass number पर डिपेंड नहीं करती है. इसे ए कैंसिल हो चुका है. Rho equals to 3m upon 4 pi r naught q. ये हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी. देखो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द न्यूक्लियर मास डेंसिटी ऑफ यूरेनियम 238 गिवन आर नॉट इक्वल्स टू 1.5 Fermi and mass of each nucleon is 1.67 10 to the power minus 27 किलोग्राम और न्यूक्लियर डेंसिटी निकलवा रहे हैं. तो फॉर्मूला आपको पता है, मास दिया हुआ है 1.67 10 to the power minus 27. और यहां पर आर नोट दिया हुआ है 1.5 फर्मी. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रो आएगा 1.18 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 1.18 10 to the power 17 kilogram per meter cube is the value of nuclear density for this numerical. Clear? और देखो एक numerical, the radius of वैल्यू दे रखी है
रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम AL 1327, nucleus is 5 Fermi. Find the radius of 52, 125 न्यूक्लियस. इसकी हमें रेडियस निकालनी है. तो आपको पता है कि अभी जो हमने एक न्यूमेरिकल किया था, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 ऑफ मास नंबर था. तो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 पावर 1/3 हो जाएगा. सो R2 इक्वल्स टू R1 5 10 to the power minus 15, A2 125, A1 27. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 फर्मी. टेन इंटू 10⁻15 मीटर और 10 फर्मी. ठीक. अब लेके चल रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस. तो ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहे हैं आपको. न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. फोर्स inside the nucleus, known as nuclear force, always in pairs between proton-protons, between neutron-neutrons, between proton-neutrons. The force inside the nucleus known as nuclear forces, and they independent on the nature of the charge. They independent of the charges, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है. So they are totally independent on the charges. And nuclear forces near about 100 times stronger than that of electric forces, and near about 10 to the power 38 times stronger than the gravitational force. So strongest force in nature, and they are very short range forces. They effective only for a short distance. 10 फर्मी के बाद तो इनफेक्टिव हो जाते हैं. After 10 फर्मी they are ineffective. They do not follow inverse square law. Inverse square law को फॉलो नहीं करते हैं. ग्राफ देखो. आफ्टर 10 फर्मी दे आर ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव. और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है, अट्रैक्टिंग फोर्स बढ़ता चला जा रहा है. एक क्रिटिकल डिस्टेंस पे जाके मैक्सिमम अट्रैक्टिंग फोर्स होगा. द मैक्सिमम अट्रैक्टिंग फोर्स. और कम करते जाएंगे, एक और पॉइंट आएगा 0.8 फर्मी पर. ये फोर्स 0 हो जाएगा, और उससे भी कम डिस्टेंस करेंगे तो फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, और वो अब जो अट्रैक्टिव था अब तक वो रिपल्सिव हो जाएगा. आफ्टर 0.8 फर्मी द नेचर ऑफ द फोर्स विल चेंज फ्रॉम अट्रैक्टिव टू इट बिकम रिपल्सिव. वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. इसको एनर्जी के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं हम लोग. देखो एनर्जी के साथ
एनर्जी के साथ है। जब फोर्स अट्रैक्टिव था तो ये रीजन हो गया नेगेटिव, और 0.8 फर्मी पर मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज द मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स सिस्टम हाईली स्टेबल, सिस्टम हाईली स्टेबल। और जैसे ही डिस्टेंस कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो सिस्टम हाईली स्टेबल हुआ करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 0.8 फर्मी। क्लियर? सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, फर्मी पे लगा करते हैं। 10 फर्मी के बाद तो इनफेक्टिव हो रहे हैं, और जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। एट अ क्रिटिकल डिस्टेंस इट बिकम मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स, और उससे डिस्टेंस कम करेंगे तो लेस अट्रैक्टिव होना स्टार्ट। 0.8 फर्मी पे 0 हो जाएगा। लेस देन 0.8 फर्मी द नेचर विल चेंज, इट बिकम रिपल्सिव इन नेचर। क्लियर? तो ये कुछ था इस वीडियो में। क्लियर?